Very good morning, good afternoon, and good evening, students. Up to the last lecture, we have seen the introduction to computer. The computer is inherited from the word computo, that is mean calculation. Then the definition of computer, there are several definitions of computer. The computer is an electronic device which perform arithmetic and logical operations within a few times. Computers is a set of hardware and softwares. Computers take the inputs from the user and give the output to the user. Then the evolution of computer, the periodic development of computer is the evolution of computer from 1642-43 up to the 1830. The Charles Babbage was invented the difference machine, and after that the first generation in 1942 to 1955, that is the evolution of computer. Then several characteristics is there of computer, such as the speed, automatic, diligence, versatility, power of remembering, accuracy. Computer doesn't have its own intelligence quotient, that's we call decision power. No feelings, no IQ, computer doesn't have feelings and emotions. Then the generations of computer. We have seen the 5 generations of computer. In the first generation, the computer used vacuum tube. This is the electronic device. Through the vacuum tubes, the computer size was very bulky. It's requiring a large room for installation, and each computer needs thousands of vacuum tubes. These vacuum tubes consumed a large amount of heat, and these vacuum tubes emitted a large amount of heat also. But these computers were very fastest calculating device of that time. They could perform 5000 additions or 450 multiplications in a second. But some disadvantages of that generation, such as bulky in size, it consume more electricity power, it's were very heated, limited storage capability, limited programming capability, and very costly. Then the second generation computer was introduced in 1955 up to 64, and in these generations of computer, the transistor, which is smaller and more reliable electronic device, was used to make these generations of computer. And this transistor was invented in 1947 by Bell Laboratory at USA में बेल लेबोरेटरी में 1947 को ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया, जिससे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रेडी किया गया, तैयार किया गया, जो क्या था, जो पहली जनरेशन की तुलना में छोटा था, लेस हीट कंज्यूम करता था, कैलकुलेशन उसका फास्ट था। किसके मुकाबले में, कंपेयर में, तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। और इस कंप्यूटर में पहली जनरेशन से ज़्यादा फीचर्स थे। दे वेर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर विद द फर्स्ट जनरेशन, इजी टू हैंडल, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, दे रिक्वायर वेरी लेस पावर, देन हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड, एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दी। ये जो पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसके कंपेयर में ट्रस्टवर्दी था, एक्यूरेट था। इंफॉर्मेशन स्टोरिंग कैपेसिटी वॉज इंक्रीज्ड ड्यू टू द यूजेज ऑफ मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। मैग्नेटिक टेप और डिस्क यूज़ की वजह से क्या हो गया था, सेकंड जनरेशन में इंफॉर्मेशन स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। रिलायबल हो गया था, मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, लेकिन क्या था,
लेकिन पहले जनरेशन की तुलना में ये बहुत बढ़िया था। ये तो सब एडवांटेजेस हो गए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। बहुत छोटा था, इसका मतलब वो बहुत छोटा नहीं था, ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर इसको भी बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर यूज़ करने की वजह से कंप्यूटर एक रूम के साइज़ से एक ज़्यादा से ज़्यादा आधा रूम हो गया होगा, या फिर उससे थोड़ा कम हो गया होगा। लेकिन ये भी साइज़ बहुत छोटी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है। तो उसमें भी बहुत पावर कंज्यूमिंग होता था, खर्चा होता था, इट इज़ कॉस्टली। वी कांट से बल्कि इन साइज, हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा था, लेकिन बड़ा था। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। ये डिसएडवांटेजेस ये है कि वो छोटा था, लेकिन पहली जनरेशन की तुलना में छोटा था, बहुत छोटा नहीं था। इसको भी हीट ज़्यादा ये भी हीट होता था, इलेक्ट्रिसिटी पावर लगती थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। देन वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब शुरू हुई? 1965 टू 75। देखो कि जब भी हम जनरेशन देखते हैं तो हमें एक देखना पड़ता है कि वो जनरेशन में जो भी स्विचिंग डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उस पर पहले से ही काम चल रहा था, तो उसको पहले से डेवलप करके वो पीरियड में उसको कंप्यूटर सेट किया। जैसे कि हमने देखा कि जो वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब पे अराउंड 1940 में काम शुरू हुआ था। 1940 के पहले 1938-39 में काम शुरू हुआ, तब जाके वो 42 से 55 में उसका यूज़ हुआ, और तब तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चला, जो कि वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बनाया गया था। अभी जब ये वैक्यूम ट्यूब के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था, तभी दूसरे डिवाइस पे काम चल रहा था, उसका नाम था ट्रांजिस्टर। वो बेल लेबोरेटरी में उसको डेवलप कर रहे थे, बेल लेबोरेटरी में। तो 1947 को बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर पे काम शुरू हुआ। इसीलिए हम बोलेंगे कि द ट्रांजिस्टर वॉज डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर जनरेशंस। उस जनरेशन में ट्रांजिस्टर को डेवलप किया गया, जिसको फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनाने के लिए। बाद में जब हम तीसरी जनरेशन पे आएंगे, जो 1965 टू 75 तक चली, तो उसमें जो आईसी यूज़ की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो 1958 यानी 1958 में सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉर्स, सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉर्स, ये दो इंजीनियर साइंटिस्ट है। इन्होंने ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसको डेवलप करा है। सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉर्स, इन्होंने डेवलप करा है आईसी को। और तीसरी जनरेशन शुरू हुई थी 65 अप टू 75, लेकिन 1958 में सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉर्स ने क्या किया था? आईसी डेवलप करी थी। और इस आईसी से फिर तीसरी जनरेशन जो शुरू हुई 1965 अप टू 75, तब उसका यूज़ करके कंप्यूटर बनाया, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। अभी देखो, आईसी का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था, तो पहले दोनों जनरेशन से तीसरी जनरेशन कंप्यूटर क्या हो गई? बहुत छोटी हो गई। आईसी टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो नोन एज द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत ही छोटी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की फैमिली थी आईसी। तो उसकी वजह से क्या हो गया? तो कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ही छोटा हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर अ वेरी स्मॉल साइज दैन द फर्स्ट टू जनरेशंस। रादर वी कैन से, अब जनरली तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर्स क्या हो गया था? तो थोड़ा सा देखने लायक हो गया था, थोड़ा सा हम उसको अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकते थे। पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर भी बहुत स्मॉल कंज्यूम करता था, कम कंज्यूम करता था। रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी। मोर डायनामिक एज कम्पेयर टू द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया था। स्मॉलर इन साइज, लेस पावर कंज्यूम्शन। They were able to execute any type of application such as the business, scientific applications. They were more reliable.
The output device like monitor and line printer were used first time in this generation. तीसरी जनरेशन में पहली बार मॉनिटर और लाइन प्रिंटर जैसे डिवाइस यूज़ किए गए. ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन दिस जनरेशन. फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरी जनरेशन में. इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि तीसरी जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो एक्चुअली आज जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसका लेगेसी था, उसका पूर्वज था. और पहले दो जनरेशन थी वो क्या था, वो प्योर कैलकुलेशन डिवाइस हम बोल सकते थे. उसमें सिर्फ उन्होंने प्रयोग करके देखे थे कि भाई इससे हम एडवांस कर सकते क्या. लेकिन हम उसको नकार नहीं सकते, हम उसको नहीं बोल सकते कि वो कंप्यूटर नहीं थे. वो कंप्यूटर ही थे, लेकिन कंप्यूटर के एकदम लेगेसी थे, पहले पूर्वज थे वो. उनसे फिर डेवलप करते करते तीसरी जनरेशन में जब आईसी डेवलप करा सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉर्स ने, तो उसकी वजह से जो तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर बना वो क्या बना, बहुत ही इजी बना, अफोर्डेबल बना, पोर्टेबल बना, सिनेबल बना, जिसको हम अच्छे से देख सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, जिसमें क्या था प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के जैसे डिवाइस यूज़ कर सकते थे, मॉनिटर यूज़ कर सकते थे, बहुत रिलायबल था, उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते थे. तो तीसरी जनरेशन कंप्यूटर जो है वो जनरली आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं उसकी लेगेसी है. दे वेयर स्टिल रिक्वायर्ड टू प्लेस, उनको क्या था, कूल प्लेस चाहिए था. आज भी कंप्यूटर हम जब यूज़ करते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से ये जो चलता आ रहा है कि उनको कूल प्लेस में सेट करना है. स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और तब का ये बहुत नया इन्वेंशन था. तो डेफिनेटली एक बात तो ये है, क्लियर है कि वो बहुत ही हाई कॉस्ट था उसका. ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. फिर क्या हो गया, फिर आ गया फोर्थ जनरेशन जो 75 टू 89 तक चला, 1975 टू 89 तक. अभी देखो आप 75 तक तीन जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में, ट्रांजिस्टर दूसरी में, आईसी तीसरी में, और चौथी में क्या हुआ फिर, द इन्वेंशन ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. अब इसी आईसी को क्या हो गया फिर डेवलप करते गए वो, और इस पे क्या हो गया, लार्ज इंटीग्रेशन हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया. आईसी पे ही अब इंटीग्रेशन बढ़ गया. आईसी की लिमिटेशंस बढ़ गई, लिमिटेशंस नहीं बोल सकते, आईसी की जो लिमिट है वो बढ़ गई. आईसी का एक्सपांशन हो गया, और जो आईसी का एक्सपांशन हुआ तो फिर इसी आईसी की जो साइज़ है वो छोटी हो गई और जो लिमिट है वो बढ़ गई. उसको मैक्सिमाइज किया गया, एक्सटेंड किया गया, एक्सपांड किया गया, और उसमें से फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई. तो उससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की साइज़ है फिर से छोटी हो गई, कंप्यूटर का जो पावर है वो बहुत बढ़ गया, कैलकुलेशन पावर बढ़ गया. चौथी जनरेशन में कंप्यूटर ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में, ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में आ गया था. The progress in LSI, that is large scale integration, and VLSI, that is very large scale integration technologies, lead to the development of microprocessor, which become the major characteristics features of the fourth generation computer. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे, तो आईसी को क्या हुआ था, LSI किया गया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया गया था या फिर उसको डेवलप किया गया था. यूजिंग this type of chip, the 8080, which was developed by Intel Corporation, a microcomputer was built in 1975. 75 में इंटेल कॉरपोरेशन में इस टेक्नोलॉजी आईसीज को यूज़ करके 8080 माइक्रो कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन 1975. 1975 में 8080 नाम का एक कंप्यूटर डेवलप किया था इंटेल कॉरपोरेशन में. कौन सी जनरेशन में, चौथी जनरेशन में, जो कब शुरू हुई थी, 1975 टू 89. उसमें क्या था, तो इस जनरेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो बहुत ही स्मॉलर इन साइज, देन जनरल पर्पज मशीन डेवलप्ड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मोर पॉपुलर, फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, चीपेस्ट अमंग ऑल जनरेशंस. डेफिनेटली ये सभी जनरेशन की चीपेस्ट थी. हार्डवेयर फेल्योर इज निग्लिबल एंड हेंस मिनिमल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड.
बहुत सारे जो इसकी डिसएडवांटेजेस थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक, उसको कम कर दिए गए। जनरल पर्पज़ मशीन, हाईली रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर, मशीन छोटा हो गया, पावर भी लेस लगने लगा, इसको कम लगने लगा। पोर्टेबल था, वर्साटाइल था, और ये जो कंप्यूटर है ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बन गया था, सभी लोग यूज़ कर सकते थे इसको, और तब का ये सबसे डेवलप्ड और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर था, चौथी जनरेशन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ जनरेशन। अभी चौथी जनरेशन को ही एक्सपांड किया। आप समझ सकते हैं कि अगर LSI VLSI यूज़ किया तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, ULSI यूज़ किया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया, जिससे क्या हो गया कि IC का जो साइज़ था वो छोटा हो गया और पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पोर्टेबल कंप्यूटर्स सच एज लैपटॉप, पावर कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड इन द फिफ्थ जनरेशन। जो आज हम देख रहे हैं 89 से आज तक, तो आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन पड़ा है वो फिफ्थ जनरेशन की देन है। डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल प्रोसेसर्स, इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ये तो ऑप्टिकल डिस्क बोल रहे हैं, हमने तो इससे भी आगे पेन ड्राइव, छोटे छोटे ड्राइव्स बना लिए हैं, USB ड्राइव्स बना लिए हैं। देन इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, देन डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज कंप्यूटर सर्वर, आज नेटवर्क शुरू है, नेटवर्किंग का ज़माना आ गया है, इंटरनेट आ गया है, WW आ गया है, लैन वैन। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, जो आज की जनरेशन में क्या है ये आपको तो नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आज के जनरेशन में कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड एट वेरियस एंगल, एट वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे एंगल से आज कंप्यूटर डेवलप हुआ है। आज आपके जो हाथ में पड़ा स्मार्टफोन है ये कंप्यूटर का एक रूप है जो बहुत ही छोटा है। हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा कंप्यूटर है जो आपको दिखे ही नहीं लेकिन आपके साथ में हो। तो ये फिफ्थ जनरेशन की देन है। आज जो हम लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन कंप्यूटर्स, PCs, जो दीज ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन की देन है। रादर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पाँचवीं जनरेशन है, ये पाँचवीं जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो आज घरों घरों में, हाथों हाथों में पहुंच गया है। सो दीज आर द 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, हियर इज गोइंग टू बी कंप्लीट। यहाँ पे 5 जनरेशन कंप्यूटर की कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर्स, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आपको कुछ डाउट रहे तो आपको पूछना है हमारे मीट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।